السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے ضروری مسائل میں سے غسل کے مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ گزشتہ ویڈیو میں غسل کی قسمیں گزری تھیں، غسل کی مکمل 11 قسمیں، اس میں سے 5 طرح کا غسل جو ہے فرض ہے، اور 4 طرح کا غسل سنت ہے، 1 طرح کا غسل واجب ہے، اور 1 طرح کا غسل مستحب ہے۔ یہ 11 قسمیں جو ہے غسل کی گزر چکی۔ اب جو ہے غسل کے فرائض کے تعلق سے، جیسا کہ وضو کے فرائض گزرے تھے کہ وضو کے اندر ان چیزوں کا دھونا فرض ہے، ضروری ہے، اگر نہیں دھوئے تو وضو نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے غسل کے اندر بھی کچھ چیزیں جو ہیں فرض ہیں، ان چیزوں کا جو ہے دھونا بہت ہی ضروری ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ غسل کے فرائض جو ہیں 3 ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں، لیکن اس میں جو ہے کچھ وضاحت بہت ہی ضروری ہے۔ پہلا فرض جو ہے کلی کرنا، اس میں کچھ مسائل ہیں، 3-4 مسائل ہیں، آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے غسل میں کلی کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے کہ وہ پانی منہ میں لیا، اس کے بعد جو ہے وہ پانی اندر حلق میں لے لیا، پی لیا، پانی منہ میں لے کر پانی پی لیا، تو کیا اس سے کلی ہوگی یا نہیں؟ یہ پینا جو ہے کلی کا قائم مقام ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی جو پانی منہ میں لے رہا ہے، لے کر پی لے رہا ہے، وہ اس طرح اس نے پیا کہ پانی منہ میں لے کر پورے منہ میں پانی کو گھمایا اندر، اس کے بعد پی لیا، تو یہ چیز جو ہے کلی کے قائم مقام، اس سے جو ہے کلی ہو جائے گی۔ نہیں، اگر آدمی منہ میں لے کر گھمایا نہیں بلکہ ایسے ہی پی لیا، جیسا کہ ہم لوگ پانی پیتے ہیں، تو اس طرح اگر منہ میں گھمائے بغیر اگر کوئی پانی پی لے تو یہ کلی جو ہے، یہ کلی کے قائم مقام اس کو نہیں سمجھا جائے گا، اس سے جو ہے کلی مکمل نہیں ہوتی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی جو کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا، پانی لے کر کلی کیا، لیکن منہ میں پانی کو نہیں گھمایا، اس لیے کہ 3 فرضوں میں سے پہلا فرض ہے کلی کرنا، یعنی منہ کے اندر کا پورا حصہ جو ہے پانی سے تر ہو جائے، پانی سے جو ہے بھیگ جائے، اس کو جو ہے کلی کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی منہ میں پانی لیا پھر ایسے ہی تھوک دیا اور منہ کے پورے حصے میں جو ہے پانی نہیں گیا، پانی کو نہیں گھمایا، تو اس سے بھی جو ہے کلی مکمل نہیں ہوگی اور غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کے دانتوں میں کھانے کے کوئی ریزے پھنسے ہوئے ہیں، کیا ان ریزوں کا نکال کر صاف کر کے کلی کرنا ضروری ہے، یا ایسے ہی جو ہے کلی کیا اور وہ ریزے جو ہے دانتوں کے درمیان میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی پھنسے رہے، تو اس سے وضو ہوگا ہمارا جو ہے کلی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ بھئی دانتوں کے درمیان میں جو کھانے کے ریزے پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالے بغیر بھی اگر کوئی آدمی کلی کر لے تو کلی ہو جائے گی، لیکن
बेहतर तरीका यही है और नज़ाफत इसी में है कि उन रेज़ों को जो है साफ कर लिया जाए। इसीलिए वज़ू के अंदर जो है मिसवाक को सुन्नत करार दे दिया गया है, ताकि दांतों के दरमियान में जो चीजें फंस जाए उनको जो है साफ कर लिया जाए। तो दांतों के दरमियान में जो चीजें फंसी हुई रहती हैं उनको निकाले बगैर भी, अगर कोई आदमी कुल्ली किया, साफ किए बगैर भी कुल्ली किया तो कुल्ली हो जाएगी, लेकिन साफ करना बेहतर है। और इसी तरीके से वो दांत जो मसनूई होते हैं, बनाए हुए दांत, कभी कभी किसी के क्या होता है कि भाई उसके जो है मुंह के पूरे दांत झड़ चुके हैं, अब उसके लिए खाने में मुश्किल दरपेश है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मसनूई दांत जो है अपने मुंह में रखवा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाकर उसका जो है इलाज कराकर जो है दांतों को जो है अपने मुंह में रखवा लेते हैं। तो ये मसनूई दांतें हैं, बनाई हुई दांतें। तो क्या कुल्ली के लिए इन दांतों को निकाल कर साफ करना, कुल्ली करना जरूरी है, या फिर जो है इनको जो है साफ किए बगैर भी, इनको निकाले बगैर भी कुल्ली हो जाएगी? तो इसका जवाब यही है कि भाई मसनूई दांत भी कुदरती दांत के हुक्म में है। जो काम कुदरती दांत करते हैं वही काम जो है मसनूई दांत का है, उसी के लिए जो है उसको जो है लगा लिया जाता है। तो वो मुंह में अगर किसी के लगे हुए हैं तो उसको निकाल कर साफ करना कोई जरूरी नहीं, और निकाल कर कुल्ली करना कोई जरूरी नहीं। उसके साथ ही अगर कोई आदमी कुल्ली कर रहा है तो इससे जो है कुल्ली हो जाएगी। ये कुल्ली के ताल्लुक से मसाइल थे। अब दूसरा फर्ज, नाक में पानी डालना। इसमें भी जो है दो तीन मसाइल हैं। पहला मसला यह है कि कोई आदमी जो है गुस्ल में नाक में पानी डाला तो पानी जो है सिर्फ नाक के किनारे तक है, ऊपर नहीं चढ़ा। नाक के नरम हड्डी तक पानी का चढ़ाना जरूरी है, लेकिन वो नाक की जो नरम हड्डी है ये यहां तक पानी नहीं चढ़ा, सिर्फ यही है, तो इससे जो है वज़ू मुकम्मल नहीं होगा। नाक में पानी डालना इसको नहीं कहा जाएगा। नाक में पानी कहां तक डालना है? नाक के नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना जरूरी है। उससे जो है कम में अगर कोई आदमी पानी चढ़ा रहा है, नाक के किनारे पर है, तो इससे जो है वज़ू जो है गुस्ल जो है मुकम्मल नहीं होगा। और इसी तरीके से एक मसला यह है कि किसी के नाक में रेंट आया और वो सूख कर चिपक गया, तो क्या उसके होते हुए नाक में पानी चढ़ाकर जो है गुस्ल कर लिया जाए? इससे जो है गुस्ल होगा या नहीं? तो इसका जवाब यही दिया जाएगा कि भाई वो जो रेंट आकर सूख कर चिपक गया है, उसके होते हुए पानी जो है नाक के जड़ तक, यानी नाक का जो चमड़ा होता है उसके जड़ तक पानी पहुंचना मुश्किल है, माने हो रहा है, तो इसी सूरत में ला मुहाला, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, उस जो है सूखे हुए चिपके हुए रेंट को जो है साफ करके उसके बाद जो है पानी चढ़ाए। उसके होते हुए अगर कोई पानी चढ़ाएगा तो उससे जो है गुस्ल मुकम्मल नहीं हो सकता। अब तीसरा मसला, नाक में पानी डालने के ताल्लुक से तीसरा मसला यह है कि अगर कोई आदमी पानी चढ़ाया और वो पानी जो है नाक के नरम हड्डी नहीं, नाक के नरम हड्डी को भी पार करके चला गया, नाक के नरम हड्डी से भी पार करके ऊपर चला गया, तो क्या इससे गुस्ल होगा या नहीं? गुस्ल तो हो जाएगा, कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन नाक की नरम हड्डी तक ही हद है, उससे ऊपर जो है अगर पानी चढ़ाएंगे तो हो सकता है कि हमारी सेहत जो है खराब हो जाए, बीमार होने का जो है एक अंदेशा रहता है। तो इसलिए जरूरी है, हमारी शरीयत जो है हर चीज में इंसान की सेहत का भी ख्याल करती है। अगर शरीयत का यह हुक्म होता कि भाई नाक के जड़ तक पानी चढ़ाओ,
तो कितनी तकलीफ होती इंसान को। तो इसलिए सिर्फ यह हुक्म दिया गया है कि नाक के नरम हड्डी तक ही पानी चढ़ाओ, उससे ऊपर जरूरत नहीं है पानी चढ़ाने की। अगर कोई चढ़ा लिया तो इससे जो है गुस्ल हो जाएगा। और इससे जो है ये जवाब भी नहीं दिया जा सकता कि भाई नाक के नरम हड्डी से ऊपर पानी चला गया है तो अब जो है तुम्हारा गुस्ल नहीं होगा, ऐसी बात नहीं। अब इसके अलावा तीसरा फर्ज है पूरे बदन पर पानी बहाना। बाल, सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक भी पूरा बदन जो है पानी बहाना, पूरे बदन को पानी से तर करना बहुत ही जरूरी है, ये एक फर्ज है। तो इसमें पूरे बदन में नाफ भी है। इंसान के जिस्म में नाफ है, जिसको हम जो है आम हमारी इस्तिलाह में, हमारी जबान में मुंबई कहते हैं। तो क्या उसके अंदरूनी हिस्से को भी धोना जरूरी है या नहीं? तो उसका जवाब यही है कि भाई अंदरूनी हिस्से का भी धोना जरूरी है, लेकिन इतने अंदर तक का धोना जरूरी नहीं है जिससे आदमी को तकलीफ होना शुरू हो जाए। जिससे आदमी को तकलीफ होना शुरू हो जाए उतने अंदर तक जो है उंगली डालकर साफ करना, हिलाना, तो ये जरूरी नहीं है आदमी के ऊपर। नाफ है, नाफ के ऊपर जो है जो हिस्सा अंदर का नजर आ रहा है वहीं तक जो है आदमी को नाफ जो है साफ कर सकता है आदमी। उससे आगे अंदर तक अगर जो है उंगली डालकर साफ करने की कोशिश करेंगे तो आदमी के जिस्म में तकलीफ होगी, आदमी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आदमी के लिए। तो इसलिए अंदरूनी, बिल्कुल अंदर के हिस्से तक जो है साफ करने की जरूरत नहीं। जो अंदरूनी हिस्सा हमें बाहर से नजर आता है वही हिस्सा हमको धोना और वही हिस्से को जो है साफ करना, उसी हिस्से पर पानी बहाना जरूरी है। और एक मसला पूरे बदन पर पानी बहाने का कि भाई औरत के सर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं। क्या इतने ज्यादा बाल होते हुए औरत के लिए जरूरी है कि औरत जो है अपने पूरे बदन के ऊपर पानी बहाए और अपने सर में भी जो है जड़ तक पानी पहुंचाए? क्या ये जरूरी है? तो इसका जवाब यही दिया जाएगा कि वे इसमें जो है किसी किस्म का कोई शक नहीं। कितने भी बाल हो, बाल के जड़ तक पानी पहुंचना बहुत ही जरूरी है। नहीं पहुंच रहा है, बाल के बराबर भी सूखा है, तो उससे जो है गुस्ल नहीं हो सकता। और एक मसला है कि औरत की चोटी होती है, औरत के बाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए जो है चोटी का जो एक तरीका चल पड़ा है। चोटी औरत जो है चोटी डालती है, औरत अपने सर में जो है चोटी बनाती है। तो क्या उस चोटी का खोल कर, उस चोटी को खोल कर बालों को धोना जरूरी है या चोटी के ऊपर से ही पानी बहा लिया जाए तो वसूल हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि औरत के लिए तो जरूरी नहीं है चोटी खोलना। चोटी खोले बगैर भी औरत वसूल करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन शर्त यह है कि चोटी बुनी हुई हो या ना हो, ऐसे ही बाल खुले हो। लेकिन दोनों सूरतों में एक शर्त यह है कि बालों की जड़ तक किसी भी हाल में पानी पहुंच जाए, किसी भी हाल में पानी पहुंच जाए। अगर बालों की जड़ तक पानी पहुंच रहा है तो औरत के लिए चोटी जो है बुनी हुई है, उसका खोलना ना खोलना दोनों बराबर। लेकिन अगर कोई मर्द है, इसके बहुत ज्यादा बाल हैं और वो बाल के शौक में जो है बाल रखकर चोटी भी जो है बना रहा है, चोटी भी जो है अपने सर में लगा रहा, चोटी भी जो है डाल रहा है, तो मर्द के लिए क्या हुक्म है? तो इसके लिए यही जवाब दिया जाएगा कि भाई मर्द के लिए चोटी का खोलना बहुत ही जरूरी है। औरत के लिए तो जरूरी नहीं, सिर्फ जड़ तक पानी पहुंच जाए, लेकिन मर्द के लिए चोटी का खोलना बहुत ही जरूरी है। अगर मर्द भाई इसके ऊपर मैं इत्तेफा कर लूंगा, चोटी नहीं खोलूंगा और बालों के जड़ तक पानी पहुंचाऊंगा, तो इससे जो है काफी नहीं हो सकता। और मर्द जो है अपनी चोटी को खोल कर ही गुस्ल करे। और एक मसला यह है कि बदन पर किसी भी हिस्से में, हाथ पैर में, चेहरे पर, पेट पर, कहीं भी जो है ऐसी चीज लगी हुई है जो पानी को बदन तक नहीं पहुंचाती, वो चीज
पानी को बदन तक पहुंचने में माने होती हैं। अगर कोई ऐसी चीज लगी हुई है तो उस चीज का साफ करना बहुत ही जरूरी है। आजकल जो है बहुत सारी चीजें ऐसी इजाद हो चुकी हैं, जो है स्टिकर्स है जो कि बहुत सारे लोग जो है शौक से अपने बदन पर लगाते हैं, कि उनमें से बहुत सारी स्टिकर्स ऐसी हैं, स्टैटस ऐसी हैं जो कि पानी को बदन तक पहुंचाती नहीं। तो ऐसी अगर कोई चीज बदन पर लगी हुई है और इसी तरीके से आटा लगा हुआ है, आटा लगकर सूख गया, तो सूख जाने के बाद वो आटा भी बदन तक पानी पहुंचाने में मदद नहीं करता, पानी पहुंचने पर माने होता है। तो उस आटे को और उस स्टिकर्स को और उस स्टेटस को साफ करके ही वसूल करना जरूरी है। अगर साफ नहीं करेंगे, पानी नहीं पहुंचेगा, तो हमारा वसूल नहीं होगा। तो ये जो है आज के लिए कुछ जरूरी मसाइल थे वसूल के ताल्लुक से। तो ये जरूरी मसाइल मैंने आप हजरात के सामने पेश कर दी है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात हो तो कमेंट के जरिए से पूछें या राब्ता करें, फोन करें, तो इंशाअल्लाह उसका तसल्ली बख्श इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। और वीडियोस देने में कुछ जो है नागा हो रहा है, तो इसकी जो है हमारी मजबूरी है कि भाई हमारे मदरसे के अंदर इम्तिहानात चल रहे हैं और इसी तरीके से मदरसे में सालाना जलसा भी होने वाला है। तो इस वजह से इन कामों में जो है हर दिन जो है वीडियोस देना मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही वक्त मिल रहा है मैं आप हजरात के सामने जो है आप हजरात की खिदमत में वीडियो भेज रहा हूं। तो आप हजरात जो है मुतमईन रहे, कोई परेशानी की बात नहीं। इंशाल्लाह जब ये कामों से हम निमट जाएंगे तो हर दिन जो है वीडियोस आते रहेंगे। तो नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। कोई बात हो तो आप जो है पूछना है आपके लिए, कमेंट के जरिए से भी पूछें या फिर जो है राब्ता करें, या फिर जो है करीबी जो लोग हैं वो लोग आकर बाकायदा मुलाकात भी कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही जरूरी मसाइल है। अगर इनको जो है हम नहीं पहचानेंगे, नहीं जानेंगे, तो हमारी इबादतें जो है मुकम्मल नहीं हो सकती, हमारी इबादतें अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकती। तो इसलिए साथी जो है जो भी है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो साथी जो है हर हमारा वीडियो देखने की कोशिश करें। जरूरी मसाइल में बहुत सारी चीजें आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं और इसी तरीके से दूसरों तक भी जो है इन वीडियोस को जो है शेयर करते रहें, पहुंचाते रहें, ताकि जैसा आपका फायदा हो रहा है वैसा दूसरों का भी फायदा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।